بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک پہاڑی علاقے میں فیاض نامی نوجوان رہتا تھا۔ وہ عقل و فہم میں اپنی عمر سے کہیں بڑا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں کے جھگڑے سلجھانا، مشکل کاموں کا حل نکالنا اور ناسمجھوں کو راہ دکھانا اس کا معمول تھا۔ مگر ایک دن اس کے دل میں تجسس نے جنم لیا کہ اس کی عقل واقعی کتنی کارگر ہے۔ کیا وہ اس دنیا کے سب سے چالاک انسانوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ گاؤں کے بزرگوں سے سنا تھا کہ دور کہیں جنگلوں کے پار ایک بستی ہے جہاں صرف چالاک اور مکار لوگ بستے ہیں۔ وہ بستی ٹھگوں کی بستی کہلاتی ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں مگر کبھی واپس نہیں آتے، کیونکہ وہاں ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے کے فن میں استاد ہے۔ فیاض نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بستی کا رخ کرے گا اور اپنی عقل کے بل پر ان چالاک ٹھگوں سے بچ کر نہ صرف واپس لوٹے گا بلکہ ان کی حقیقت بھی دنیا کو دکھائے گا۔ اگلے دن علی صبح وہ سفر پر روانہ ہوا۔ پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے کئی دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر کار وہ اس پر اسرار بستی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اس نے فیاض کو گھورا اور بولا، واپس چلا جا نوجوان، یہ جگہ تیرے جیسے سادہ لوگوں کے لیے نہیں۔ فیاض مسکرایا اور بولا، میں سادہ نہیں، عقل مند ہوں اور آیا ہوں سچ جاننے، نہ کہ جھوٹ میں کھونے۔ بوڑھا ہنسا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی فیاض بستی میں داخل ہوا، اس نے فوراً محسوس کیا کہ یہاں کی فضا عام جگہوں سے مختلف ہے۔ لوگ بہت خوش اخلاق اور میٹھے بول بولنے والے تھے، ہر کوئی مسکرا رہا تھا جیسے سب مہمان نواز ہوں۔ ایک دکاندار نے فوراً آواز لگائی، ارے مسافر، تھکے ہوگے، آؤ کچھ کھا لو، کچھ پی لو، سب مفت ہے آج۔ فیاض نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا، مگر دکاندار نے ضد کی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ پہلا امتحان ہے، اتنی مہربانی بے سبب نہیں ہو سکتی۔ وہ دکان پر گیا اور ایک لسی پی۔ دکاندار نے کہا، بس یہ رسید رکھ لو، کل دے دینا قیمت، ہم مہمان سے پیسے نہیں لیتے۔ فیاض نے رسید پر نظر ڈالی جس پر لکھا تھا 5 سونے کے سکے۔ وہ چونک گیا، صرف ایک گلاس لسی کے 5 سونے سکے، یہ تو کمال کا دھوکہ ہے۔ مگر وہ خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ بازار گیا تو ایک عورت نے کہا، بیٹا، میرے بیٹے کو تلاش کرنے میں مدد دو، وہ صبح سے گم ہے۔ فیاض نے دل میں سوچا، یہ بھی کوئی چال ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی انسانیت کے ناطے اس نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت کے ساتھ ایک گلی میں گیا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کہا، تم نے ہماری بہن کو دھوکہ دیا ہے، اب تمہیں جیل جانا ہوگا۔ فیاض ہنسا اور بولا، ثبوت دکھاؤ، صرف الزام کافی نہیں۔ وہ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ پہلی بار کسی نے ان کی بات کو رد کیا تھا۔ فیاض کی آنکھیں چمکنے لگیں، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بستی صرف دھوکہ دینے والوں کی نہیں بلکہ کہانی سنانے والوں کی بھی تھی۔ ہر واقعہ ایک جال تھا، ہر جملہ ایک چال۔ شام کو وہ ایک سرائے میں گیا، وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا جو کتابیں بیچ رہا تھا۔ اس نے فیاض کو کہا، بیٹا، یہ کتاب لے لو، اس میں ہر ٹھگ کی چال درج ہے، صرف ایک چاندی کا سکہ۔ فیاض نے پوچھا، اگر سب چالیں اس میں لکھی ہیں تو تم خود کیوں ٹھگوں سے نہیں بچ سکے؟ بزرگ خاموش ہو گیا۔ فیاض مسکرایا، بس یہی فرق ہے عقل اور چالاکی میں۔ رات گئے وہ بستی کی مسجد کے قریب بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ صرف ابتدا ہے، ابھی بہت سے جال میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر میں ہوشیار رہا تو سچائی کی روشنی سے اس بستی کے اندھیرے کو چیر سکتا ہوں۔ اور اسی ارادے کے ساتھ وہ اگلے دن کے لیے تیار سو گیا۔ صبح جب فیاض بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں بستی پر کچھ عجیب زاویے سے پڑ رہی تھیں، جیسے روشنی بھی اس جگہ سے خوف کھاتی ہو۔ اس نے خود کو تازہ دم کیا اور ارادہ باندھا کہ آج وہ بستی کے بیچوں بیچ جائے گا جہاں سب سے شاطر دماغ بستے ہیں۔ راستے میں وہ ایک چوک پر پہنچا جہاں مجمع لگا تھا۔ درمیان میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھا لوگوں کو سنہری خواب دکھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے پاس ایسی زمین ہے جو سونے کی پیداوار دیتی ہے، جو بھی سرمایہ لگائے گا امیر ہو جائے گا۔ لوگ جھوم جھوم کر تالیاں بجا رہے تھے، مگر فیاض نے غور کیا کہ وہ زمین صرف نقشے میں تھی، حقیقت میں کسی نے نہ دیکھی نہ چھوئی۔ جب اس شخص نے فیاض کو دیکھا تو بولا، نوجوان،
क्या तुम दौलतमंद बनना चाहते हो? फैयाज ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि तुम खुद क्यों गरीब हो अगर जमीन इतनी जरखेज है। मजमा खामोश हो गया। सबकी आंखें इस शख्स पर जिम गईं, मगर वो चालाक था। फौरन बोला, मैं दूसरों को अमीर करके खुशी हासिल करता हूँ, मेरी दौलत दुआओं में है। लोग फिर तालियां बजाने लगे, मगर फैयाज जान गया था कि इस बस्ती में अल्फाज को हथियार बनाया जाता है, सच को झूठ में लपेट कर पेश किया जाता है। फैयाज वहां से निकला तो एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, भाईजान, मेरी माँ बीमार है, दवा के लिए पैसे दो। फैयाज झुका, लड़के की आंखों में देखा और पूछा, माँ का क्या नाम है? लड़का उलझ गया, कुछ बोल ना पाया। फैयाज हंसा, जा अपनी चालाकी कहीं और आजमा। तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, कैसा जालिम है, बच्चे को झुठला रहा है। फैयाज ने जवाब दिया, जालिम वो है जो माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर किसी का भला चाहता है। मजमा इकट्ठा हो गया, मगर इस बार फैयाज ने सबके सामने लड़के का इम्तिहान लेकर साबित कर दिया कि वो पेशावर भिखारी था। बस्ती में अब उसकी शोहरत हो चुकी थी, लोग उसे अक्ल वाला मुसाफिर कहने लगे थे। कुछ इससे बचने लगे, कुछ उसे आजमाइश समझकर ललकारने लगे। वो जानता था कि असल खतरा अब शुरू हो रहा है। एक दिन इसे दावत दी गई एक बड़े मकान में, जिसे बस्ती का रईस कहलाता था। वहां पहुंचा तो बड़े कमरे में खुशबुएं फैली थीं, कीमती कालीन, रोशन फानूस और चमकते बर्तन सजे थे। रईस ने कहा, मुसाफिर, तुमने हमारे लोगों को आईना दिखाया है, हम चाहते हैं तुम हमारे साथी बन जाओ, हम तुम्हें इज्जत, दौलत और ताकत देंगे। फैयाज ने नरमी से कहा, अगर ये सब धोखे की बुनियाद पर है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो किसी और की सच्चाई छीन कर दी जाए। रईस मुस्कुराया, तुम बहादुर हो, लेकिन हम भी कम नहीं। बस्ती के कानून के मुताबिक जो कोई सरदार की पेशकश रद्द करे, इसे 3 आजमाइशों से गुजरना होता है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसी बस्ती का कैदी बना दिया जाएगा। फैयाज ने कहा, कबूल है। अगले दिन पहला इम्तिहान था, अंधेरे में सच को पहचानना। इसे एक कमरे में भेजा गया जहां 5 आदमी बैठे थे, हर एक ने कहा कि वो सच्चा है और बाकी झूठे। फैयाज ने सिर्फ आवाज, सांस की रफ्तार और सवालों के जवाबों से अंदाजा लगा लिया कि सच कौन बोल रहा है। उसने सही आदमी को चुना और पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान था लालच का जाल। उसके सामने खजाने के ढेर लगाए गए और कहा गया कि वो सिर्फ एक चीज उठा सकता है, अगर नियत साफ हुई तो कुछ खोएगा नहीं, वरना सब कुछ खो देगा। फैयाज ने खजाने को नजरअंदाज किया और एक पुराना नक्शा उठाया जिस पर बस्ती के असली कानून दर्ज थे। इसका इंतखाब दुरुस्त साबित हुआ। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त था, झूठ को सच बनाना, असच को झूठ से कहा गया कि एक झूठ बोलकर बस्ती के लोगों को कायल करे, अगर वो कामयाब हो गया तो जीत जाएगा। फैयाज ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ झूठ कहकर सिखाया, तुम्हें हकीकत से मतनफिर किया, तुम्हें धोखा दिया। लोग हैरान हुए, मगर वो बोलता रहा, और अगर तुम ये मान लो तो साबित हो जाएगा कि तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई सच कहता है तुम उसे झुठला देते हो, और जब झूठा चालाकी से बोले तो तुम तालियां बजाते हो। मजमा खामोश हो गया। फिर कुछ लोग झक गए, कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ ने तालियां बजाईं, और रईस ने ऐलान किया, तुमने हमें आईना दिखाया, तुम तीनों आजमाइशों में कामयाब रहे। मगर इस रात रईस ने खुफिया मुलाकात बुलाई और कहा, यह नौजवान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, अगर ये वापस गया तो हमारी बस्ती का राज इफ्शा हो जाएगा, इसे रोकना होगा। अंधेरे में साजिशें जन्म लेने लगी और फैयाज के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब ये सिर्फ आजमाइश का खेल नहीं रहा था, बल्कि बस्ती की हकीकत बचाने और सच्चाई की जीत का मरका बन चुका था। फैयाज को इस रात नींद नहीं आई। इसे एहसास हो चुका था कि अब मामला सिर्फ अक्ल आजमाने का नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत की बाजी लग चुकी है। जिस बस्ती में वो हक और सच के अलंबरदार बनकर आया था, वो बस्ती अब उसे खामोश करना चाहती थी। मगर वो डरने वालों में से न था। उसने तय कर लिया कि अगर सच्चाई के लिए लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ेगा। सुबह हुई तो बस्ती का माहौल गैर मामूली था। रास्ते सुनसान थे,
खिड़कियां बंद, लोग घरों में दबके हुए थे। सिर्फ एक ऐलान गूंज रहा था जो रईस ने करवाया था, आज बस्ती के मैदान में अक्लमंद नौजवान का आखिरी फैसला होगा। जो कोई इसके साथ है सामने आए, वरना खामोशी में हिफाजत है। फैयाज तन्हा मैदान में गया, मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब वहां बस्ती के पुराने ठग, दुकानदार, फकीर और वो औरत जिसने बच्चे का बहाना किया था, सब इकट्ठे खड़े थे। रईस तख्त पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द कई मुसल्लाह लोग खड़े थे। इसने कहा, फैयाज, तुमने हमारी बस्ती को तोड़ा है, हमारे निजाम को चैलेंज किया है। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। अब फिर एक मौका दिया जाता है, अगर तुम सबके सामने मान लो कि ये बस्ती तुम्हारे जैसी अक्ल के लिए नहीं और तुम अपनी बातों से रुजू कर लो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और इज्जत से रुखसत करेंगे। फैयाज ने गहरी सांस ली, इर्द गिर्द देखा और बुलंद आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे इसका अंजाम मेरी जान की बाजी ही क्यों ना हो। तुम्हारा निजाम मक्काराना है, तुम लोगों की भूल भलियों में कैद करके उन्हें गुलाम बनाते हो, तुम झूठ को सच कहलवाते हो और सच को जुर्म बना देते हो। एक लम्हा को मैदान खामोश हो गया। रईस ने इशारा किया और मुहाफिज फैयाज की तरफ बढ़े, मगर इसी लम्हे मजमा में से एक शख्स चीखा, बस बहुत हो गया। वो वही फकीर था जिसने पहले फैयाज को गुमराह करना चाहा था। उसने कहा, ये लड़का सच कह रहा है, हम सब झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं, अब हम खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। इसके साथ ही दो और लोग आगे बढ़े, फिर एक और फिर कई। मैदान का मंजर पलट गया। वही लोग जो बरसों से रईस के खौफ में थे, अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। रईस के मुहाफिज पीछे हटने लगे, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उनके चेहरों पर बगावत की रोशनी थी। फैयाज ने इस मौका को पहचान लिया। वो एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और कहा, आज का दिन फैसला करेगा कि ये बस्ती झूठ की रहेगी या सच की। अगर तुम सब वाकई बदलना चाहते हो तो आओ एक नया कानून बनाएं, एक नया निजाम जिसमें ना कोई ठग हो ना टेगा जाए, जहां अक्ल जुर्म ना हो और सच्चाई कमजोरी ना समझी जाए। लोगों ने नारे बुलंद किए, सच जिंदाबाद, रईस मुर्दाबाद। रईस पीछे हटते हटते अपने महल में बंद हो गया, मगर मजमा ने महल का घेराव कर लिया। बहुत जल्द रईस ने हार मान ली और बस्ती का कंट्रोल लोगों के हवाले करना पड़ा। कुछ ने तजवीज दी कि रईस को सजा दी जाए, मगर फैयाज ने कहा, सजा तब ही मानी रखती है जब वो इस्लाह लाए। अगर हम भी जुल्म से बदला लें तो हम और वो बराबर हो जाएंगे। रईस को बस्ती से जलावतन कर दिया गया और उसके तमाम साथियों को अवामी अदालत के सामने पेश किया गया। फैयाज ने कई दिन इस बस्ती में गुजारे, नए उसूल बनाए, लोगों को उनके असल चेहरों से रोशनास कराया, बच्चों को तालीम दी और बूढ़ों को इज्जत दी। बस्ती का नाम ठगों की बस्ती से बदलकर रोशनी नगर रख दिया गया। जब सब कुछ संभल गया तो फैयाज ने रुखसत की तैयारी की। लोग उसे रोकना चाहते थे, मगर वो बोला, मेरा काम सच फैलाना है और अभी कई बस्तियां बाकी हैं जहां झूठ के अंधेरे छाए हुए हैं। जाते हुए एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अच्छा इंसान, तुम फिर आओगे ना? फैयाज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब भी तुम्हें सच्चाई की जरूरत हो तुम मुझे पाओगे। और वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया, जहां सूरज की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ी, जैसे कुदरत ने इसकी फतह पर मेहर लगा दी हो। यूं एक अक्लमंद नौजवान न सिर्फ एक ठगों की बस्ती को बदल गया, बल्कि दुनिया को ये सबक दे गया कि सच्चाई कमजोर हो सकती है, मगर जब वो डट जाए तो झूठ के हर कले को गिरा सकती।